Yeah. Um, well, whenever I say language in a country like ours, I actually refer to multilinguality, because not only we all speak more than one language, we also combine different languages when we speak. Like in everyday, context, suppose I'm speaking in Odia or Hindi, I switch over to English, or I'm speaking in Odia, I switch over to Hindi. I mix Hindi, Odia, and English or Bengali in the same sentence, and I speak, depending on who I speak to. So it is, it's not only that I have knowledge of more than one language, I also mix languages in at the same time, and therefore, whenever I say I'm talking about language, I assume that in a country like ours and also in several countries, where multiple language speakers cohabit, we refer to multilinguality, and at the level of policy, we refer to multilingualism. So whenever I say language, know that I'm assuming a kind of multilinguality, not that it is accepted across board, because linguists work with single language whenever they analyze linguistic structure and the nature. They refer to one language at a time. But when I talk about social phenomena, or even the language used in a pedagogic space, that is of a classroom, we refer to mostly multilinguality. And whenever we talk about policy, we refer to multilingualism. And for the first time, in an extremely pronounced manner. Not that we never talked about multilingualism, because our own constitution, the constitution I'm talking about, which was written in 1950, was did mention about India speaking several hundreds of languages and having 8 schedule, which had, to begin with 14 scheduled languages in which the state was mandated to communicate, and then it expanded to 22 languages, and it recognized 121 languages, 100 languages actually, beside these 22 languages that are spoken by more than 10,000 people, and then several hundred languages that are spoken by less than 10,000 people. In other words, this country speaks several hundred languages, and constitution recognized this. And that is also the reason why we had three language formula, which was to be made a policy, but because of the conflict between southern and northern dialogue, and also within each part, this became a formula. It never became a policy per se, but it became a guiding principle, for all our policy work in education, in media, in every other official forums. Everyday context was always multilingual. Home was always multilingual. There was no, restriction on how we code switch, or, switch between languages, or mix, different languages in the same sentence when we talk. But in official forums where we defined medium of instruction or medium of communication, we definitely stuck to one language, say Hindi or English or Odia or Bengali, depending on the context, or Telugu, or, depending on the context or the state we are in. But even in those official spaces, when we talk to each other, we often used many multilingual resources, and nobody disagrees on any of this. In fact, in education, most of the schools and colleges we have found are very multilingual. Schools, if they're located in a village, some people claim that it is monolingual. If it is located, say, in a village in Haryana, they would be speaking some kind of Haryanvi, Haryanvi, which is, one a variation of Hindi, or it's a language on its own. But and every children, they claim that would be at least familiar with it or speaking that language. But when we come to higher education, which basically admits students from different regions, wherever it is located, it gets students from a larger catchment area, and therefore it is fundamentally multilingual. And our own research in the past shows that whenever, you know, uh, whether we had this policy in this pronounced form or not,
a successful teacher always smuggled students, languages to classroom. Their resources, expression, the experiential resources, as well as affective, emotional resources to the classroom to make communication more interesting, more meaningful, and more engaging. Whether it is science class or social science class, or even class other kinds of educational practices, technical education and others. For the first time, NEP 2020 actually has elaborately dealt with language, you know, policy in education. It does, at the outset, recognizes multilinguality of the society and mandates education to be multilingual. And it very clearly says that the students should be taught in their mother tongue slash home language slash regional language, whichever is applicable there. And we had, AICT in 1961 actually signed an MOU with Commission for Scientific and Technical Terms, CSTT, to translate all scientific, very esoteric, complex scientific terms into Hindi and other regional languages, which were included in 8th schedule, to facilitate, kind of translanguaging or code switching or language mixing in the classroom. If teachers are teaching in regional languages or languages of students, they can take the help of these terms and communicate in their communicate in a language which is mutually intelligible. So implicitly there was an acceptance for multilingual communication in higher education, including technical education, STEM education, right from the beginning. But the the major change that we see now, which is a very, very welcoming step. And being a language expert, I'm really glad and I congratulate the government for doing it, And I tell you, it requires courage to do it. Any, you know, any transformative policy which foregrounds itself in the diversity of people requires a lot of courage. And getting this language question to the forefront actually needed courage, which earlier we were not able to do that well. But this NEP 2020 actually has done it tremendously well. It talks about multilinguality of children and the need to teach in children's mother tongue or home language in school, as well as in higher education. That includes technical education, skill education, adult education, wherever there is adult literacy. The higher education is open to admission of people from different, actually, all higher education accepts them. So I'll not talk about adult education separately, but technical education and skill education. And it mandates the institutions to teach as far as possible in thus thus that runs across the document in children's language. And one of the first steps it took was in the direction of strengthening this translation initiative, which is on since last 4 or 5 years. And I was invited by the national agency few times to look into the correct translation. I was, of course, was consulted for psychology, discipline, like is the translation, technical translation is correct or not. But alongside, this is an ongoing exercise, as I'm saying, since 1961, they, revamp this, and a very concerted effort is going on in this institute. But along with this, what the states are instructed and also institutions of higher learning are instructed to do is to translate all the reading materials, and basically seminal, more fundamental reading materials in science, technical, say, engineering sciences, basic sciences, medical sciences, and also Ayurvedic and other kinds of, Unani and other kinds of sciences. They were asked to translate the seminal books and research papers into at least 22 8 schedule languages. And also it opens up a possibility for translation into non-scheduled
100 languages, but they haven't started doing it. But there is an implicit acceptance of using these books in the classroom and then engaging in some kind of multilingual transaction in the classroom. So this initiative is very, very, I'll not say new. Okay, the second one, translating um, the basic, um, the more fundamental books and papers into 22 regional languages at a scale that we are doing at the moment is obviously for the first time. And I would congratulate the government for doing it. And this was also the need of the time. The call, this was a call we had to take. And we had to take much before. I mean, we are doing it now. And so I'm happy that we are doing it. And it actually meets many of our overall goals that are spelled out in higher education. One, teaching in mother tongue. Second, of course, translation is one of the result of that. Second, whenever we imagine quality universities and colleges, um, we need to understand students' diversity and also retain the equality. Yeah, I haven't started my main talk. I was just giving, so I'll move my slides. Don't worry. What I'm saying that language is very fundamental to human knowledge and human thought. If I ask you to think about anything and share it, report to me without employing language, it becomes very difficult. If you want to run this, okay, let me do this experiment a bit, and then I come back to my slide. Just okay, let me do one small experiment, and then I'll go to my main slide. I give you 1 minute, or maybe no, maybe 15 seconds, 30 seconds, because you'd require that lifetime to do that, more time. Anyway, so if I ask you to think about any concept, about anything, and report to me without employing language, can you do it? Just think for 30 seconds and tell me. You will not use language for thought, but you are able to think. Can you do it? You can open your No, ma'am. audio and talk. Tell me. No, ma'am. Like, Not sometimes, we don't use language, but we use images and other thing, and we can still think a bit. But if I ask you to think without employing a concept, you will not employ any concept, but you will think. Can you do that? You cannot. Because thought is fundamentally conceptual. Now, whenever we say concepts, say pani, gravity, or any concept you pick up, is language. There is a word for it, there is a symbol for it. So once when the child doesn't have language, child just points at object कि मुझे पानी चाहिए, child shows it or cries, and the mother tries to interpret what the child wants, and mother thinks that okay, maybe he's thirsty, so mother gives water. But the day child has this word water or pani for that object, pani, doesn't matter wherever the child is and wherever the water is, the child says pani, mother knows what to give to the child. And both think about water without even seeing water anywhere in their vicinity. Okay. So when objects get a symbol, the thought is mediated by that symbol. I don't need to see the sun to talk about sun now and here. Whenever I talk about sun, I use the term sun. You all know what I'm talking about. And if I talk about it like gravity, you can't see. I may experience, you may experience, but it's also not explicit part of our experience. But if I talk about gravity, you don't, what I'm talking about, and you can also participate in that discourse and further it. So in the post-linguistic phase in the life of a child, when the child has a language,
and that language replaces all the objects. In other words, the child has many lexical categories which replace the object and also also communicate some complex phenomena. We fundamentally think through language. So if I ask you, brain can think without language, not without semiotic systems. It needs image. Image is part of our semiotics. It needs something to think through. It cannot, mind is fundamentally mediated by semiotic systems. Language is the largest part of that semiotic system. In the post-linguistic phase, what happens that because we have a name for every object, we think through language. Now, if the child or the student doesn't get that language or doesn't get that word, the child cannot imagine. The child cannot imagine about that phenomenon. And therefore, language is very fundamental in classroom dialogue, in classroom pedagogy. Without, if I do not establish a kind of mutual intelligibility in terms of language, I will not be communicating with you. If I start speaking in Chinese or Odia, in just no time, you will be reduced to idiots. I'll say, इनका कोई IQ नहीं है, सब कुछ नहीं जानते हैं. Because I'm speaking in Chinese or I'm speaking in Odia and you can't answer me, you can't understand me. So language can reduce students to empty slates. This, okay, I don't have to say more about it because this is part of our cognitive, everyday cognitive systems. Okay. I'll come to little more technical part. Multilinguality, as you know, is the default condition. All higher education classrooms are multilinguals, they are multicultural, and our thinking is fundamentally mediated by language. And this thinking, this language is also not only about language, it's also about my experiences, my own experiences, my own identity, my own emotions are embedded in this language. So if a higher education institution wants students to participate in the dialogue in the classroom about any scientific phenomenon, the students' own language, their experiences, their identity, their emotions have to come on board, so that otherwise they cannot fully participate in the dialogue. And because all these are languaged, the language of the students have to be part of classroom pedagogy. So now the question is, how do we use students' language in classroom? The questions that we generally raise are, is language used in scientific discourse different from everyday discourse? And what role does language play in the understanding of scientific concepts? This is a very fundamental question that scientists ask, the STEM education asks. They said, okay, the textbooks, suppose we translate it into Hindi, but you go to say in a college in Bihar, students should be speaking Maithili, Magahi, some tribal languages. They may be little familiar with Hindi, but their familiarity also changes. Like some may be very good in Hindi, some may not be so good in Hindi. So how do we, I have replaced English textbooks by Hindi, but then Hindi is also not equally distributed in the population. So what do I do in the classroom? That's one. Second, to make the classroom more multilingual, a multilingual classroom rather, more participatory, I ask students to bring their experiences in whatever language they can, and then as a teacher, I will decide how to use those experiences in the classroom to discuss about any scientific phenomenon. Okay? Like suppose dast hua, medical science mein baat ho raha hai. So what is this as a phenomenon? And what tells you that, there is stomach upset or there is diarrhea or simple stomach upset, how is it different from diarrhea? And there are different kinds of diarrhea, So how do people talk about that? And how does science explain those conditions? Okay, suppose I want to discuss that in the classroom so that everybody's experience becomes part of the classroom. Students may
bring their linguistic resources through their experiences. In fact, bring their experiences using their linguistic resources, and those resources could be at variance with Hindi and English. So how do we use those everyday discourses and the language in which they're embedded in the classroom? That is one fundamental question that STEM education asks. And second, what the STEM education asks is that, when students bring their everyday discourses, everyday experiences to classroom, a lot of these are like everyday concept. डायरिया की दस्त हुआ, and दस्त हुआ को वो तरह तरह की बताएंगे, पर उनको एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरिया when I want them to come to and discuss, जब वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आके बात करेंगे एवरीडे एक्सपीरियंसेस से, तो वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हम कैसे बिल्ड करेंगे उनके एवरीडे एक्सपीरियंसेस को लेके, वो एक पेडागोजिक क्वेश्चन जो स्टेम एजुकेशन ऑलवेज आस्क। सपोज हम फोर्स के बारे में बात करते हैं इंजीनियरिंग साइंसेस में या फिजिक्स में, फोर्स क्या होता है, how do we experience force, and what is this scientific concept force, how do I define force? Okay, so ये जो everyday experience से आके एक scientific definition देने तक ये जो रास्ता हम कैसे तय करेंगे और उसकी पेडागोजी कैसे होगा, उसकी जब हम बातचीत करते हैं उसमें लैंग्वेज की एक अहम सवाल आती है। और एक सवाल आती है जो है कि जो एवरीडे कॉन्सेप्ट है उससे हम कैसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को आएंगे। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। ये है कि 4-5 बच्चे बैठे हैं, मैंने एक पानी की कटोरी लेती हूँ, दिस इज वेरी क्लासिकली पियाजेशियन एग्जांपल, और मैंने एक पतला सा पिन, लोहे का पिन लेती हूँ और एक गोला, कागज की गोला लेती हूँ, दोनों को पानी में डालती हूँ। तो जो पतला सा पिन है वो सिंक कर जाता है, जो गोला फ्लोट करता है। तो मैंने बच्चों को पूछेंगे, अच्छा ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डूब जाता है? कुछ बच्चे ये बोलते हैं या बोले हैं, रिसर्च स्टडीज दिखा रहा है कि जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो डूब जाता है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो तैरता है। देन सपोज मैंने गोला को छोटा कर दी और ये पिन को बड़ा कर दी और मैं दोनों को डाली, ये बड़ा ऑब्जेक्ट सिंक कर गया, अब छोटा गोला फ्लोट कर रहा है। सो आप उनको पूछेंगे कि देखिए अब क्या करें, अब क्या हो रहा है? तो उनका जो पहला जो प्रेमाइस था वो चैलेंज हो गया कि बड़ा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, अभी तो छोटा ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है। सो देन दे स्टार्ट आस्किंग द रियल साइंटिफिक क्वेश्चन। They realize that the size of the object is not entirely determining the phenomenon of sinking. So there is more to it. So इस तरह से एक टीचर जो हमारा एवरीडे एक्सपीरियंसेस है वो बहुत बार क्या करते हैं, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को चैलेंज करते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस सपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस एक्चुअली काउंटर इंट्यूटिव होता है, दैट गोज अगेंस्ट साइंटिफिक फेनोमेना। एंड वहां पे जब हम बात करके आगे बढ़ेंगे, एक एक पैरामीटर लाके दिखाएंगे कि नहीं, size also matters, but size is not the only thing that matters. There are other conditions, other parameters that matter in explaining why certain objects sink while other objects float. Okay, so ये जो everyday experiences आता है वो scientific experience बनने concept, everyday concept जो आता है वो scientific, जो everyday concept हमारा observation से based है और language में embed है, उसको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट करने के लिए उस ऑब्जर्वेशन के एनालिसिस जरूरत है, और वो एनालिसिस भी वो लैंग्वेज में एम्बेडेड है। उस लैंग्वेज से धीरे धीरे हम कैसे मोर साइंटिफिक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें कैसे धीरे धीरे आएंगे, वो एक बड़ा सवाल है जो हम साइंस क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। ये दोनों चीज थोड़ा जैसे बच्चों, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे और उनको ये जो लूज एवरीडे कॉन्सेप्ट से एक मोर डिफाइंड थियोरेटिकल जो और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को कैसे लाएंगे, यहाँ पे पेडागोजी का एक अहम रोल होता है और इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। लेट मी नाउ जस्ट लुक एट माय स्लाइड्स दैट आई हैव डेवलप्ड फॉर यू। This is of course there are theories about it, एक जो साइंटिफिक डिस्कोर्स होता है
वो एक इस बारे में है कि साइंस इज कल्चर एंड साइंस लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है क्या? अगर हम मैथमेटिक्स देखेंगे, इतने सारे सिम्योटिक्स उसमें यूज हो जाता है। इक्वल टू के अपने सम सिंबल है, ग्रेटर देन तो को अपने सिंबल है, और जब हम लिखते हैं फुल सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए हम उसको एक फ्रेजल फॉर्म में लाके उसको यूज करते हैं, दैट रिप्लेसेस फुल सेंटेंसेस, ताकि हमारा जो जब हम साइंटिफिक आर्गुमेंट्स मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो लिखते हैं, वो थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है, कम्युनिकेटिव पूरा रहता है, बट हम फुल सेंटेंशियल फॉर्म यूज नहीं करते हैं जो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एज ए रिजल्ट एक अपना एक सिम्योटिक सिस्टम डेवलप कर जाता है जो लैंग्वेज से पे बेस्ड है, symbols पे बेस्ड है, but it doesn't, and it follows some principles of syntax, but it doesn't follow the entire principle of syntax। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे हम से लिटरेचर लिखते हैं, इसमें यहाँ हम वो नहीं करते हैं, यहाँ हम फेनोमेनन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए लैंग्वेज को बड़े प्रिसाइज फॉर्म में यूज करते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को हम एक सिंबल देके वो सिंबल से आगे चलाते हैं। ठीक है, अब ये है कि जब एवरीडे जो लैंग्वेज है हम जो रोज बोलते हैं, वो अभी रिप्लेस हो रहा है बाय ए मेटोनिमी, ए सिस्टम ऑफ मेटोनिमी, जो सिंबल मैं बता रही थी, इक्वल टू हो या समेशन की साइन हो, जो भी हो, एंड वो जो सिंबल से हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बड़ी सवाल है। और उस सिंबल को यूज करके हम कैसे साइंटिफिक कम्युनिकेशन करते हैं, वो उसके नेक्स्ट सवाल है। और ये सवाल आप लोग हमेशा करते आ रहे हो, क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हो, जो साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम है वो उसको यूज कर रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा नया चीज कुछ ही नहीं है। नया पेडागोजी हम लोग क्योंकि टीचर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, नया चीज जो है उतना नया नहीं है, जस्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इट नाउ, ये है कि हम स्टूडेंट्स को ये जो साइंस की अपनी एक भाषा है, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो भाषा अगर सारे बच्चे शेयर नहीं करते हैं तो एक क्लासरूम में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। एक वो भाषा शेयर होना चाहिए, दूसरा जब हम वो एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, उस भाषा को यूज करके अगर वो भाषा सारे बच्चे समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए, और उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने कई सारे चीजें यूज करूँ, भाषा यूज करूँ, एक्सपीरियंसेस यूज कर रही हूँ, एक मल्टीमीडिया जो रिसोर्सेस है, कोई सपोज मीडिया यूट्यूब में कुछ 3 डायमेंशनल उसमें बता रहे हैं, कोई फेनोमेनन में दिखा रही हूँ, ये सारे यूज होता है। इस सब की मदद से मैं एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छा से स्टूडेंट्स के सामने रख पा रही हूँ, उनको इनवाइट करूँ, उसके साथ उसके बारे में बात करें और उसके बारे में बात को आगे बढ़ाएं। ये सब मैं कर पा रही हूँ। ये हमारे टीचर्स को सोचना है कि वो कैसे करें। ठीक है, हमारे जो लैंग्वेज की जो नेचर है वो है कि हम एक वर्ड यूज करते हैं पर उसको कई सारे मीनिंग्स होता है, जिसको हम पॉलीसेमी कहते हैं, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग लेता है। तो हम साइंस में उस पॉलीसेमी को, जो ये मल्टीपल मीनिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं और स्टूडेंट्स को एक तरह की मीनिंग की तरफ लेते हैं जो वो साइंटिफिक डिस्कोर्सेस में यूजफुल होगा, वो एक बड़ा सवाल है। और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में पॉलीसेमी की चैलेंज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जैसे आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं, आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं, टीचर्स पूछते हैं। सो उन बच्चे ने जब उनके भाषा से एक वर्ड ढूंढते हैं, कई बार उनको मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। जब मिलता नहीं है तो वो क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जब डिस्क्राइब करते क्या करते हैं, खूब सारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस को लाते हैं जिससे वो फेनोमेनन एक्सप्लेन होता है। सो एक तो कुछ बच्चे अपने भाषा से वो वर्ड लेके आ रहे हैं और वो वर्ड के साथ एक्सपीरियंसेस भी आ रहा है। कुछ बच्चे उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं,
तो वो शुरू से ही एक डिस्क्रिप्टिव मोड को जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्लासरूम में क्या होता है, खूब सारे डिस्कर्सिव रिसोर्सेज जनरेट होता है, और उस डिस्कर्सिव रिसोर्सेज को लेके अगर टीचर आगे बढ़े, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन खूब ज्यादा होता है। और वो जो डिस्कर्सिव रिसोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ, वो मल्टीलिंगुअल है, मल्टीसिम्योटिक है, एंड ऑल्सो समटाइम्स मल्टीमोडल भी है। अगर एक बच्चा कोई यू नो 3D का कोई पिक्चर दिखा के, कोई यूट्यूब दिखा के एक्सप्लेन करता है, वो एक दूसरे तरह की मीडियम लेके आ रहा है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात करने के लिए। नाउ टीचर की ये चैलेंज है कि ये सारे जो फैला हुआ डिस्कोर्स है उसको समेट के कैसे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ लो जो लॉजिकल हो, and we are able to argue on the basis of, and we lay down premises and argue logically on the basis of those premises to arrive at certain kinds of conclusion. ठीक है, ये टीचर के लिए चैलेंज है। और एक टीचर जो अगर साइंस के कॉन्सेप्ट समझ गया, वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग साइंस हो या बेसिक साइंस हो, वो ये जो क्या फैला हुआ जो लिंग्विस्टिक, सिम्योटिक एंड नॉलेज रिसोर्सेस है, उसको वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, उसको हैंडल करने में अगर हम टीचर को कुछ मदद देना चाहते हैं, वो एक तो टीचर हैज टू डेवलप ए काइंड ऑफ ओपननेस टू मल्टीलिंगुअलिटी। हम ये मल्टीलिंगुअलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये मानना जरूरी है कि स्टूडेंट जब तक बोल के या जब तक हमारे डिस्कॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं सीखेंगे, उनका एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी नहीं बनेगी, एक समझ आगे जाके नहीं बन पाएगा, मोटिवेशन इसलिए कम होगा। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे मोटिवेशन हाई रहेगा, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। मेरा एक 2006 की पेपर है मैथमेटिक्स के ऊपर, जहाँ पे मैं आर्ग्यू करती हूँ एजिव डिस्कोर्स पे, जहाँ पे मैं आर्ग्यू करती हूँ कि we don't need big theories of learning science. What we need is basically a classroom where scientific discourse is carried out. Science के नाम पे हम कुछ और नहीं कर रहे, scientific discourse कर रहे हैं। अगर सन के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, या नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, बट वी मेक श्योर that every student participates. और टू गेट एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट, हर बच्चा, हर स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करे, वो करने के लिए जो भी चाहिए मुझे करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैं एक अच्छा से एजिव डिस्कोर्स वहां पे बिल्ड करती हूँ, एक लॉजिकली चलती हूँ एज ए टीचर, एंड स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट करती हूँ कई तरह से आके उसमें पार्टिसिपेट करे। ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न। There is no second theory of learning. The only theory that concerns me is whether students participate in the discourse I create, and whether they go with that discourse and they transform that discourse as and when needed. So participation is learning. Participation ये नहीं कि हाँ आपको आता है, बच्चे बोल दिया हाँ आता है, अच्छा इसका क्या जवाब है, एक yes या no या एक आंसर में दे दिए, वो नहीं। जब वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आगे क्लासरूम में बढ़ाने के लिए इफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट, पार्टिसिपेट एंड टेक द डिस्कोर्स अहेड, they will learn. It is impossible that they will not learn. So the only theory of learning for me, I'm a psychologist, जो हमारा behaviorism है, constructivism है, social constructivism है, वो सब बड़े बड़े theories है, मैं भी पढ़ाती हूँ सारे theories, but for me, जब मैं क्लासरूम को जाती हूँ, only theory that works for me and that I follow is this discourse theory. अगर क्लासरूम में मैं एक डिस्कोर्स खड़ा कर पा रही हूँ, मैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इस तरह से और एक्सपीरियंशियल डाइवर्सिटीज को इस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ क्लासरूम में कि सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और हम लोग साथ मिलके वो डायलॉग को आगे बढ़ा के एक कंक्लूजन पे आते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम इज नॉट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू थिंग, लेट्स बी वेरी क्लियर। क्लासरूम के बाहर
डिस्कवरी नया होता है, बट क्लासरूम में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम है उसी को कैसे हम इंट्रोड्यूस करें स्टूडेंट्स को, और जब वो नॉलेज के साथ पार्टिसिपेट करें और वो नॉलेज को प्राप्त करें, दे हैव दिस क्रिएटिविटी आफ्टरवर्ड्स टू क्रिएट न्यू थिंग्स। आप साइंटिस्ट हो, पढ़ाते हो साइंस, आपको मालूम है कि कई सारी चीजें क्लासरूम में नहीं डिस्कवर किया होता है, बट जो क्लासरूम टीचिंग अगर हम लोग को मिला है तो साइंस के साथ हम हिस्टोरिकली जुड़ते हैं, और वो आगे जाके कल मुझे नया चीज दिखाएगा, नया चीज मैं डिस्कवर करूंगी। ठीक है, वो रिसर्च में कर सकती हूँ, और चीजों में कर सकती हूँ, बट क्लासरूम की जो रोल है वो है कि जो तरह तरह के ज्ञान चारों तरफ है और वो कैनोनाइज्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, उस ज्ञान को हम कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, उस ज्ञान के पीछे जो लॉजिक है वो कैसे उनके पास पहुंचे, उस ज्ञान के पीछे जो एपिस्टेमिक फाउंडेशन है कि वो जो नॉलेज है वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो नॉलेज क्यों एक्सेप्ट हुआ, बाकी नॉलेज क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, वो जो पूरी थियोरी है उसको कैसे उनके तक पहुंचाए। जब उनके पास वो पहुंचे तब वो नॉलेज के साथ पार्टिसिपेट कर पाए और उस नॉलेज को आगे जाके और आगे बढ़ाए। सॉरी, हाँ मैं आपको फोन करूंगी थोड़ी देर के बाद। Okay, so all of you have done science, so you know that जो साइंस की अपनी एक एपिस्टेमिक फाउंडेशन है जो रीजन से चलती है, वेरीफाइबिलिटी से भी चलती है। एक चीज को हम प्रूफ करने के बाद कहते हैं ये एक ट्रूथ है। सो एक तरह की प्रूफ हमें हमेशा देना पड़ता है, और वो प्रूफ देने के लिए हम कई सारे मेथड यूज करते हैं। वो सब क्या है उसको एक्सपोज हमारे स्टूडेंट्स को देना जरूरी है। जैसे हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में कई सारे नॉलेज है, वो बहुत आसान नहीं है कुछ कुछ चीजें प्रूव करना। कुछ चीजें तो बहुत आसान है प्रूव करना, कुछ कुछ चीजें बहुत चैलेंजिंग होता है, एंड वो हमारे लिए चैलेंजिंग है। आगे जाके हम उसके साथ जुड़ के उसको नॉलेज क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसको समझे। पर ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि वो जो नॉलेज खड़ा हुआ वो कैसे खड़ा हुआ, हाउ एंड व्हाट। एक तो वो नॉलेज है क्या, और वो नॉलेज खड़ा कैसे हुआ। जैसे एस्ट्रो साइंस, एक जो इंडियंस जो स्काई को ऑब्जर्व करते थे, हमारी मैरीटाइम एक्टिविटीज भी बहुत स्ट्रांग था, because we have such a long coastal area, so maritime activities हमारा था, कई सारे एक्टिविटीज जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली स्पेस को ऑब्जर्व करते थे, उसको टाइम और डिस्टेंस के साथ रिलेट करते थे, एंड वी ट्राई टू कैलकुलेट on the basis of the relationship that we cognize and also theorize। जो ह्यूरिस्टिक्स डेवलप करता था उसको यूज करके हमने एक तरह से डिस्टेंस या टाइम के बारे में बात कर सकते थे, डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। वो जो ऑब्जर्वेशन को हम थियराइज किए थे वो किस तरह की थियराइज किए थे, और वो नॉलेज की नेचर क्या है, ये सब बात क्लासरूम में होना जरूरी है। और ये मैंडेट है कि हमारे एजुकेशन क्लासरूम में उस कोई भी नॉलेज सिस्टम की ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन, ऑन्टोलॉजी क्या है, कि वो नॉलेज किस बारे में है, वो क्या है, और वो नॉलेज कैसे आया है, जिसको हम एपिस्टेमिक फाउंडेशन कहते हैं। उस नॉलेज को हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू आए हैं, या सिंपल जैसे मैथमेटिक्स इज ऑलवेज डिस्कर्सिव। हम एक फॉर्मूला लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और डिस्कोर्स में चलते रहते हैं। वी डोंट लुक फॉर इमीडिएट we don't look in our environment something to support that phenomenon. It is entirely logical, entirely discursive. But जब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, बहुत बार हम वो फेनोमेनन हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में होता है, तो हम वेरीफाई करते हैं इमीडिएट जो फिजिकल वर्ल्ड को रेफर करके। इट हैज अ रेफरेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो नॉलेज दोनों है, साइंस और मैथमेटिक्स, ये दोनों बहुत अलग है। जैसे मैं नंबर्स के बारे में बात करती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे नंबर 2 दिखाइए, आप दिखा पाएंगे क्या?
ये देखिए, ये घड़ी है और ये पेन है, इनमें कोई मेल नहीं है। मैं बोलूंगी मेरे पास दो सामान है, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकता है, ये तो घड़ी है, ये है सामान में, बोल सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी आ गया। ठीक है, मैं अगर बोलूंगी आप मुझे दो इसमें दिखाइए, आप नहीं दिखा पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूंगी कि मुझे घड़ी दिखाइए, आप दिखा पाएंगे। ठीक है, इट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, आई कैन टच इट, आई कैन पानी मैं दिखा पाऊंगी आपको। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है सन, यू नो स्पेस में है, मैं उसके पास जा नहीं पा रही, उसके लाइट मेरे तक पहुंच रहा है पर मैं उसके पास नहीं जा पा रही हूँ, बट मैं देख रही हूँ। अगर मैं नहीं देख रही पा रही हूँ, मैं आपको कह सकती हूँ ठीक है ये स्पेस में है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर कल अगर मेरे पास कोई तरीका है स्पेस जाने के लिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट वहां एग्जिस्ट करता है। We cannot say any of these about mathematical concepts. Set theory मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, नंबर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, प्लस मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, because these are the objects that are derived, that developed in the discourse itself. They are discursive objects. So दोनों की जो ऑन्टोलॉजी है वो अलग है और जो एपिस्टेमिक बेसिस है वो अलग है। एक में मैंने फिजिकल वर्ल्ड को मैनिपुलेट करके नॉलेज पे अराइव करती हूँ, पानी को लेके मैं उसके साथ कुछ करके बता दूं, अच्छा पानी कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैथमेटिक्स में मैंने डिस्कर्सिवली चलती हूँ। ठीक है, दोनों का जो ज्ञान पे तक पहुंचने के जो माध्यम है, जो एपिस्टेमिक बेसिस है, हाउ डज दिस नॉलेज इवॉल्व, इज वेरी डिफरेंट। When we come to science or mathematics or medical science or engineering sciences, not those knowledge, or agricultural sciences, whichever knowledge we talk about, even social science, ये एक जगह पे नहीं डेवलप किया है, एक लैंग्वेज पे नहीं डेवलप किया है, और एक सिर्फ एक ही तरह से मेथड में डेवलप नहीं हुआ। It is very multilingual, multicultural, multisemiotic, multimodal. So knowledge, that is all of this, can be discussed in a classroom, bringing in pedagogic diversities. अलग अलग pedagogy लाना पड़ेगा, अलग अलग मेथड लाना पड़ेगा, अलग अलग भाषाओं को यूज करना पड़ेगा, और ये भी मानना पड़ेगा कि ये साइंस, जैसे हम लोग, मैं जब ज्वाइन की थी 96 में एज ए फैकल्टी, एंड मैं पहले एनसीईआरटी में 1.5 साल लेक्चरर थी, उसके बाद JNUI असिस्टेंट प्रोफेसर बन के मैंने, हाँ उस समय हमारा बहुत बड़ा लड़ाई था, वो था कि ये जो यूरोसेंट्रिक मैथमेटिक्स है उसके अगेंस्ट पे कैसे बात करें, बिकॉज मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स की नॉलेज लोगे, ये सबसे ज्यादा मल्टी कल्चरल है, मल्टी सिम्योटिक है, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी सिम्योटिक है। चाइनीज अपना वो सिम्योटिक्स कुछ एक तरह से लिखे, मैथमेटिशियंस जो इंडिया के जो मैथमेटिशियन है वो अलग तरह से लिखे। ठीक है, जीरो यहाँ से गया, अलजेब्रा और एक जगह से आया। अगर हम मैथमेटिक्स एज ए नॉलेज सिस्टम कहेंगे, वो यूरोप में नहीं डेवलप किया। यस, एक्सियोमेट्रिक सिस्टम एक स्टेज में यूरोप में डेवलप किया, बट यूरोप की जो मैथमेटिक्स या साइंस जो डेवलप हुआ, वो इसीलिए डेवलप हो पाया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज बाकी जगह से जा रहा था, वहां इंडिया से ट्रैवल कर रहा था, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहा था, ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, वहां से ट्रैवल कर रहा था, यूरोप एंड अफ्रीका, अब फ्रैक्टाइल्स लीजिए, अफ्रीका से ट्रैवल कर रहा था। सो द वे वी टॉक अबाउट पैटर्न्स एंड थियोरीज ऑफ पैटर्न्स is possible because of not only Africa, actually because all our countries. So हमारे ये था कि ये जो एक बड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन हुआ है कि ये इस जो नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज है, यूरोप में डेवलप किया है, उसको जब तक हम काउंटर नहीं करेंगे, उस हेजिमनी के साथ हम रियल नॉलेज को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, एंड बाकी सोसाइटीज एक्सक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, सो ऑल द साइंस टीचर्स हैव टू टॉक अबाउट this multisemiotic, multi-epistemic, multilingual basis of development of scientific knowledge. और जब वो नॉलेज के बारे में बात करते हैं, क्लासरूम में हर तरह की डिस्कोर्स एंड नॉलेज की डाइवर्सिटीज को लाना पड़ता है, और जब वो डाइवर्सिटीज आता है तो कोई एक कम्युनिटी के बच्चा
सुपीरियर पोजीशन में नहीं रहता है, या एक कम्युनिटी के बच्चे या एक भाषा बोलने बच्चे हमेशा सफ़र करते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्लासरूम में क्या हो रहा है। अच्छा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस भी नहीं आ रहे, वो जुड़ नहीं पा रहे, ये नहीं होगा। सो अगर हम इक्विटी और एक्सेलेंस की बात करते हैं और हम कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को साइंस की ज्ञान समान तरह से दें, तो ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, सिम्योटिक डाइवर्सिटी हो एंड ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस हो, ये सारा क्लासरूम को आना चाहिए। I'll not get into these concepts, जो बच्चों में कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, वो ऑल आप लोग सबको मालूम है, पियाजे को अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा। कई सारे कॉन्सेप्ट को लेके कई सारे धारणा होता है, उस धारणे से एक कॉन्सेप्ट शेयर्ड साइंटिफिक आइडिया को आने के लिए एक लॉजिक लेके हम आर्ग्यू करते हैं, और उस लॉजिक पे तरह तरह की मेथड यूज करते हैं, मोडालिटीज यूज करते हैं टू हेल्प आवर पेडागोजिक सिस्टम टू रीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, उनमें कई सारे हम मेटाफर्स यूज करते हैं, जैसे पाथ गोल मेटाफर एक कहते हैं, या कॉन्डुइट मेटाफर्स कहते हैं, कि वो कई सारे मेटाफर्स हम यूज करते हैं। जैसे पाथ गोल में है कि दिस लीड्स टू दिस, ये बड़ा बहुत एक्सेप्टेड मेटाफर है मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये हम लैंग्वेज से लेते हैं। और हमारे अपने आई टॉक्ड अबाउट, जैसे क्लासरूम में जब हम बात करते हैं, बहुत बार हम लोग दो लैंग्वेज, जैसे मैं अंग्रेजी अभी मैं जो कर रही हूँ, बिकॉज नॉर्दर्न रीजन का है, मैं बहुत बार हिंदी में आ जाती हूँ ताकि सबको समझ आए। पर मेरी अपनी जो एजुकेशन ज़्यादातर, एक्चुअली मेरा स्कूलिंग ओडिया में हुआ था, पर हायर एजुकेशन अंग्रेजी में चला, मैं जेएनयू में अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। पर जब मैं टीचिंग, इवन स्कूल टीचर की टीचिंग में, ट्रेनिंग में जाती हूँ, मैं भाषा जोड़ती हूँ। जैसे उड़ीसा जाती हूँ, मेरा उड़िया इतना अच्छा नहीं कि मैं हर तरह की चीज़ बोल पाऊँ, क्योंकि उड़िया की जो यूज़ है वो ज़्यादातर घर पे होती है और रिलेटिव्स के साथ होती है, तो मैं थोड़ा उड़िया अंग्रेजी मिलाती हूँ। अगर वहाँ पर मेरे बंगाली में अच्छा बोल सकती हूँ, आसामीज थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, तो जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होता है मैं मिला देती हूँ। हिंदी तो बोलती हूँ, मेरी हिंदी में थोड़ा एक ग्रामेटिकल जेंडर आज तक ठीक नहीं हुआ, मैं जाता हूँ कभी होता है, मैं जाती हूँ कभी होता है, पर मैं जाता हूँ बोल देते हो तो स्टूडेंट्स को मालूम है कि मैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से नहीं हूँ, और वो मुझे सवाल नहीं करते, समझ जाते हैं ना। सो मैं कई बार लैंग्वेज बदलती हूँ, या एक बार वो लैंग्वेज मिक्स करके बात करती हूँ, so that everybody understands, and this is not a crime। पहले जैसे लिंग्विस्ट बोलते थे कि एक भाषा जब हम सिखाते हैं सिर्फ वही भाषा की प्रयोग होगा, वो गलत है। और जब भाषा को हम यूज करते हैं कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन लेवल पे तो मल्टीलिंगुअल होना ही चाहिए, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिटी के साथ मल्टी सिम्योटिक एंड मल्टी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आल्सो कम इन। तो मैं अगर क्लासरूम को डाइवर्स रखना चाहती हूँ, ज़्यादा कम्युनिकेटिव रखना चाहती हूँ, मुझे ये सब करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट अ क्राइम, इनफैक्ट इट्स अ फैसिलिटेटिव एक्सरसाइज। एंड हम लोग क्या कहते हैं, बक्तिन विगस की, ये सब इस बारे में बात किए हैं कि चॉम्स्की तो नहीं, ऑफेलिया गार्सिया बात करती है, वी ऑल ट्रांस लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली। अब जैसे मैं बात बोल रही हूँ, मैं जब हिंदी बेल्ट को जाती हूँ, कुछ कभी कभी छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसमें टीचर ट्रेनिंग में मैं जाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलती हूँ। बहुत सारे वर्ड्स मुझे हिंदी में नहीं आते, कुछ फ्रेजेस नहीं आता है, मैं अंग्रेजी बोल देती हूँ वहाँ पर, एंड लोगों को समझ आता है क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में रहती हूँ। एंड वो जब मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स में थोड़ा अलग अलग तरह से मिक्स करती हूँ, कहीं मैं सिर्फ लेक्सिकल कैटेगरीज लाती हूँ, कहीं पे मैंने बिल्कुल सिंटैक्स लेवल पे स्विच करती हूँ, सो एक सेंटेंस हिंदी में बोली, एक सेंटेंस इंग्लिश में बोली, तो दो लैंग्वेज में मैं स्विच कर रही हूँ। एंड कभी कभी मैं बहुत एफर्टलेसली, जैसे दिल्ली की हिंदी में पंजाबी है, हरियाणवी है, अंग्रेजी है, सब आ जाता है, उस तरह से मैं बात करती हूँ, लोगों को समझ आ जाता है। पर जब मैं बात करती हूँ लोगों को समझ आता है। बात है कि जब वे लिखेंगे, बिकॉज उसका एक इवैल्यूएशन साइड है, वहां पर थोड़ा मेरी आर्ग्यूमेंट है बीइंग ए मल्टीलिंगुअल एक्सपर्ट, कि आप थोड़ा, हम लोग कंसिडरेट हो सकते हैं। अगर हिंदी में बच्चा लिख रहा है, स्टूडेंट लिख रहा है, या हायर एजुकेशन में इंग्लिश में लिख रहा है, उसमें 2-3 वर्ड हिंदी में आ गया,
इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में आ गया, पर वो साइंटिफिक आर्गुमेंट करेक्ट दे रहा है, आई थिंक वी शुड गिव फुल मार्क। ये मेरी आर्गुमेंट है। एनसीईआरटी एंड मिनिस्ट्री इसको एक्चुअली रिजेक्ट नहीं करते हैं, ज्यादा ओपनली नहीं बोलते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बट थोड़ा ये इंडिविजुअल टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर आर्गुमेंट, साइंटिफिक आर्गुमेंट सही है और थोड़ा सा हम लोग ट्रांस लैंग्वेज कर दिए चलेगा। बट आगे जाके इन लोग को जब वो खुद पढ़ाएंगे एंड पब्लिश करेंगे, ज्यादातर पब्लिकेशन अंग्रेजी में होता है आजकल, थोड़े हिंदी और हिंदी में बेसिकली कुछ जर्नल्स आने लगे हैं, अच्छे जर्नल्स, तो बट ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी में मुझे पढ़ना पड़ता है ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स, तो ये लैंग्वेज तो डेवलप करना है, तो उसके लिए एक एफर्ट एनीवे एजुकेशन रखता है कि कैसे एक लैंग्वेज या दो लैंग्वेजेस उनका ज्यादा अच्छा डेवलप करे। बट वी शुड नॉट बी टू रिजिड अबाउट इट। मल्टीलिंगुअल बिलीफ, मल्टीलिंगुअल एटीट्यूड is about accepting, ग्रहण करना, accepting the fluidity of languages, कि लैंग्वेज इसमें एक फ्लूइडिटी है, एक आमदनी है एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ वो बात करते हैं। ऐसे जगह अगर हम ट्रैवल करेंगे, ऐसे नहीं कि एक लैंग्वेज यहाँ खत्म होता है और दूसरा लैंग्वेज शुरू होता है। लैंग्वेज जहाँ खत्म होता है दूसरे जगह से शुरू होता है, उसमें कुछ मेल दोनों में आता है, या लैंग्वेज ए से कुछ लैंग्वेज बी को जाता है, लैंग्वेज बी से कुछ लैंग्वेज ए को आता है, और दोनों एक्चुअली एक मल्टीलिंगुअल उसमें बात करते हैं। सो अगर इंडिया में देखेंगे एक लैंग्वेज कंटिन्यूटी बना रहता है और उस कंटिन्यूटी को सब एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉब्लम है कि उसको हम एवरीडे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बट एकेडमिक डिस्कोर्स में उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज में चलो। आगे से हम लोग का आर्गुमेंट है उनको लेंगे ज्यादा एक या दो मेजर लैंग्वेजेस की तरफ, बट मल्टीलिंगुअलिटी को थोड़ा एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे। और वो मल्टीलिंगुअलिटी क्या होता है कि जब बच्चे, मैं फोर्स के बारे में बात करती हूँ और बच्चों को पूछती हूँ ठीक है आप फोर्स है उसको आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो, थोड़ा उसके बारे में बात करिए। जब सारे बच्चे फोर्स को लेके, कोई वेट के बारे में बात करता है कि ये भारी है उसके ऊपर रख देते हैं तो उसके वजन से इसमें कई तरह से लोग बात करते हैं, पर जब वो सारे बच्चे बात करना शुरू करते हैं, जो लर्निंग की जो गोल है, से आज टुडे आई वांट टू टीच फोर्स, सो मैं आके क्लासरूम में बोलती हूँ कि बच्चे आज हम स्कूल एजुकेशन से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हायर एजुकेशन में भी हुए थे, मैं फोर्स के बारे में बात करूंगी, and I assume that everybody shares that goal और मोटिव कि आज हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। वो एजम्पशन गलत है। बट अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगी ठीक है हम बात करते हैं, जैसे फोर्स आप कैसे किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, एंड सारे बच्चे थोड़े थोड़े बोलते हैं। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स आर टॉकिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन वॉट एवर लैंग्वेज। अच्छा, उनको अगर हम लैंग्वेज फ्रीडम टू यूज लैंग्वेज नहीं देंगे वो बात नहीं करेंगे। कई सारे बच्चे चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी अच्छा नहीं आता है। अगर टीचर हमेशा हाई फाई अंग्रेजी में बात करता है वो बच्चा तो डरेगा बात करने के लिए। टीचर को भी ट्रांस लैंग्वेज करना है और वो बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, और थोड़ा कोशिश करिए ट्रांसलेट करने में जो मेजर लैंग्वेजेस है ताकि बाकी लोग समझ जाए। अगर वो नहीं ट्रांसलेट कर सकता है, दूसरे बच्चे को पूछेंगे कोई ट्रांसलेट कर सकता है क्या इनका बात, तो वो थोड़ा मदद लेके अगर हम वो बात आगे बढ़ाएं तो जो लर्निंग गोल है वो शेयर्ड होता है। विगस्की आर्ग्यूज कि ये जब लर्निंग गोल या मोटिव जब शेयर होता है वहां से जो कलेक्टिव लर्निंग शुरू हो जाता है। अगर हम चाहते हैं इक्विटीज अबाउट डाटा, जब हम इक्वालिटी या इक्विटी की बात करते हैं कि क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, वो सबको इक्वली एक्सेस होना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब हम लैंग्वेज फ्लूइडिटी एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड एक्सपीरियंशियल डाइवर्सिटी, क्योंकि एक्सपीरियंस इज एम्बेडेड इन लैंग्वेज, लैंग्वेज डाइवर्सिटी जब तक क्लास में हम ना लाए, उसके तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना रखे, तब तक नहीं होगा। सेकेंड, जब हम स्टूडेंट्स को इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, जो लर्निंग गोल है, मोटिव है क्लासरूम का, वो शेयर नहीं होता है। जब तक वो शेयर नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होता है। कुछ बच्चे जो शेयर करते हैं वो सीखेंगे,
जो अच्छे से शेयर नहीं करते वो बस थोड़ा ऐसे चुप रहेंगे, देखते रहेंगे, सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे या ये सुनो में चला लेंगे, इस तरह से। आई थिंक ये सब वी हैव, बिकॉज हमारे पास बहुत इसमें रिसर्च किए हैं और हमने क्या किए थे, जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पे दिल्ली में, उसमें हमने कुछ स्टडी किए थे और कुछ कॉलेजेस में किए थे कि हाउ एक्चुअली टीचर्स यूज लैंग्वेज एंड स्टूडेंट्स यूज लैंग्वेज इन द क्लासरूम। एंड जहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी बढ़ जाता है और टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके तरफ, और वो अलाउ करता है, कैसे बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और शेयर्ड मोटिव की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने एक दिखा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग कलर कर देते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। कुछ अगर मैं दिखाऊंगी, वी डोंट हैव टाइम, उसमें देखेंगे ब्लू रेड ग्रीन भरा रहता है कि कैसे बच्चे अलग अलग लैंग्वेज लाते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस लाते हैं, और एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में वो बात करते हैं, और उससे कैसे क्लासरूम की टीचिंग बहुत अच्छा से आगे बढ़ाते हैं। वी डोंट हैव टाइम टू गेट इनटू, कभी और अगर हम बात करें तो मैंने बहुत और सवाल लाऊंगी, इसमें बड़े सारे चीजें हैं कि मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ 2 मिनट में, उसके बाद मैं बंद करती हूँ। इन अ साइंस क्लासरूम वेयर मल्टीलिंगुअल टीचर एंड मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद डिफरेंट होम लैंग्वेजेस एंड हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउ डू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स नेगोशिएट द लैंग्वेज बैरियर्स। तो यही जो मैं बात कर रही थी, मोर और लेस ब्रॉडली मैं बात कर चुकी हूँ। एंड कोड स्विचिंग ट्रांसलैंग्वेजिंग की तरफ ओपन रहे, इवैल्यूएशन में इतना डिमांड ना करे कि सिर्फ शुद्ध हिंदी या शुद्ध उड़िया या शुद्ध अंग्रेजी में लिखे, थोड़ा अगर वो, बट साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। और बच्चों की लाइफ एवरीडे वर्ल्ड से कुछ मुहावरे, कुछ मेटाफर्स अगर लाके हम एक साइंटिफिक फेनोमेनन को प्लेस कर सकते हैं in an intellectually more accessible way, that is brilliant। और उसमें मल्टी मोडल अगर कर सकते हैं, कई तरह तरह की मोडालिटीज ला सकते हैं, 3D या प्ले, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, हजार चीज हम ला सकते हैं टू एक्सप्लेन ए साइंटिफिक फेनोमेनन, दैट इज वंडरफुल। और एक साइंस डिस्कोर्स की अलग अलग मेटोनिमी होता है, उस मेटोनिमी को कितना आसानी से हम इंट्रोड्यूस करते हैं मल्टीलिंगुअलिटी को लेके, वो अगर हम बात करें तो वो और बढ़िया होगा। एक क्लासरूम में हमने दिल्ली में किए थे कि कितने भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कोई क्लासरूम में 8-10 से भाषा से तो कम आया नहीं, 15-20 तक भी गया, 8-10 तो मिनिमम रहा। तो देर इज नो, आई मीन मल्टीलिंगुअलिटी इज द डिफॉल्ट रियलिटी, उसको इग्नोर करके हम एक इक्विटेबल एंड पार्टिसिपेटरी पेडागजी नहीं खड़ा कर सकते हैं। ओके, मैं आगे नहीं जाऊंगी स्लाइड्स का, मैं कभी और जब बात करूंगी मैं थोड़ा और टेक्निकल एरिया को जाऊंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे उड़ीसा में हो रहा है, आईआईटी, एक आईआईटी नहीं, एक एजेंसी अपना प्रोजेक्ट लिया है, मेडिकल साइंस की जो सेमिनल टेक्स्ट बुक से और रिसर्च पेपर से उसको ट्रांसलेट करना है, उड़िया में ट्रांसलेट करना है, and they have done a good job in last 2 years, and UP is doing, all states are doing, and idea ये है कि इन सबको लेके एक बड़ा सा ई लाइब्रेरी बनेगा जिसमें हर लैंग्वेजेस में ये बेसिक जो फंडामेंटल मटेरियल्स अवेलेबल होगा और वो इजीली डाउनलोडेबल होगा, एंड स्टूडेंट्स अगर चाहें टेक्स्ट मटेरियल को अपना भाषा में पढ़ सकें। सो क्लासरूम पेडागजी इज वन थिंग, उसको हम सप्लीमेंट कर रहे हैं also teaching learning material, which is a terribly which is actually a brilliant initiative that we have started. I think I'll stop here. We just have 5 minutes to take questions, Yes, ma'am. and 3 questions ले सकते हैं। Kindly unmute yourself and you can ask the question. आपको समझ आया जो मैं बात कर रही थी? मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा। Yes, yes, ma'am. It's a very nice presentation. And Dr. Momita Das wants to ask the question. Yes, ma'am. Momita, ask me. Hello, ma'am. This is a really interesting topic. In fact, I had a couple of questions yesterday also about the same topic.
For me, I mean, as far as my understanding, in the previous talk, not your talk, ma'am. For your talk, I'm all for it. I agree that it should be multilingual, not using one single language. My question yesterday was if we are using only, like say, a regional language, and I gave an example कि अगर मैं बंगाली हूँ और अगर सिर्फ बंगाली में पढ़ाया जाए तो फिर मेरे लिमिटेशन हो जाएगा कि लाइक एज अ स्टूडेंट माय लिमिटेशन विल बी कि मैं फिर दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करना मेरे लिए मुश्किल होगा. बट आपके टॉक से तो मैं 200% या 1000% एग्री करती हूँ कि क्लास लेने के टाइम वी शुड बी मल्टीलिंगुअल, वी शुड सो दैट डिस्कशन फ्लो. स्टूडेंट्स हमेशा इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें पूछे. अगर हमें पूरा समझ में नहीं आया, आई एम नॉट अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन, आई एम लर्निंग, बट आई थिंक वही आपने जो कहा कि मुझे भी वही प्रॉब्लम होता है जेंडर प्रॉब्लम में. बट अदरवाइज आई थिंक आई एम ओके कम्युनिकेटिंग. तो ये तो मल्टीलिंगुअल डिस्कशन चलना चाहिए. बट माय क्वेश्चन इज दैट जब वो क्वेश्चंस मतलब आंसर्स, मैं जियोलॉजी पढ़ाती हूँ, आंसर्स अगर पूरा वो लोग हिंदी में लिखे यूजिंग टर्म्स, आई डोंट नो, मे बी आई मे नॉट बी एबल टू फॉलो देयर हैंडराइटिंग. अगर हिंदी में लिखे तो भी चलेगा, लेकिन सोचिए कोई साउथ से आया है, डिस्कशन के टाइम तो ठीक है, बट इफ ही वांट्स टू राइट एनीथिंग इन हिज लैंग्वेज, ऑब्वियसली आई डोंट हैव क्लू अबाउट ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस. नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत ठीक है, पता चल जाएगा. So that's the problem in India, because it's not one or two languages, it's like 22 official languages. तो कोई और लैंग्वेज में लिखे और टीचर अगर वो लैंग्वेज समझ ना पाए तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. तो वो उसके लिए मैं मतलब एनईपी में जो बोल रहे हैं कि मल्टीलिंगुअल पढ़ाओ, लेकिन लिखने के टाइम कुछ तो एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि आंसर्स में लिखने के टाइम ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इस टाइप से कुछ. मेरा ये कहना है कि इसीलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं. यू नो, कितना भी डिकंस्ट्रक्ट करें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक रहता है. सो ज्यादातर मल्टीलिंगुअलिटी को हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन की इश्यू बनाते हैं. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, हम बोलते हैं ठीक है, आप अंग्रेजी में मत लिखिए, कम से कम उस जगह की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो 2 लैंग्वेज हम चलते हैं, कम से कम रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश आए हायर एजुकेशन में, तो कम से कम उसमें लिखिए. ये है. पर मेरा ये कहना है कि अगर कोई 2 वर्ड तेलुगु में लिख दिया, ठीक है, हम उसके लिए उसको रेप्रीमेंड तो नहीं करेंगे. मैं जेएनयू तो हालांकि थोड़ा हम लोग का शुरू से मल्टीलिंगुअल पॉलिसी था. मुझे याद है 2 साल ऐसे हुआ था कि तेलुगु में स्क्रिप्ट है, फुल स्क्रिप्ट इन तेलुगु. तो हम लोग का ये डिबेट हुआ कि अब इसको हम इवेल्युएट करें या नहीं करें. फिर पॉलिटिकल साइंस में एक तेलुगु प्रोफेसर था, उसको हम बोले तुम पढ़ लो, 5-6 पेज है, थोड़ा ट्रांसलेट कर दो. जैसे एक पैराग्राफ ट्रांसलेट कर ले तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगा, फिर हमको इवैल्यूएट कर देंगे. एंड वी इवैल्यूएटेड. और ये हमारे हर साल जैसे 200 एंट्रेंस स्क्रिप्ट से अभी तो मल्टीपल चॉइस हो गया, इसलिए दूसरा चीज आ गया. बट पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था, हर साल 2-3 स्क्रिप्ट ऐसे आते थे. हमारे एक हिंदी में एक फैकल्टी है, जितने हिंदी में स्क्रिप्ट आते थे कम आते थे, बिकॉज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा इंग्लिश है, सब इंग्लिश में लिखते थे. पर अगर हिंदी में आता था तो हम उसको पढ़ते थे किसी के मदद लेके. मेरा ये कहना है कि यस, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, मैं इसलिए वो क्वेश्चन दे रही थी कि आई विल नॉट से कि आई आस्क देम टू राइट इन देयर लैंग्वेज. नो, हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए या तेलुगु में लिखिए, क्योंकि वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है. पढ़ाएंगे हम मल्टीलिंगुअल इसमें लेके. पर अगर कभी 2-4 वर्ड यूज हो गया, आई विल नॉट रिप्रीमेंड देम. मैं फिर किसी का मदद लेके उसको मैं समझ के देखूंगी कि साइंटिफिक आर्गुमेंट है कि नहीं. माय आर्गुमेंट वाज अबाउट एक्सेप्टिंग मल्टीलिंगुअलिटी, है ना. थोड़ा बहुत मल्टीलिंगुअलिटी रिजिडिटी के साथ नहीं चल पाएगा. एक तरह की फ्लूइडिटी और डाइवर्सिटी के एक्सेप्टेंस के साथ ही चल सकता है. ठीक है. और जो आप पहले बात की वो सही है. आई मीन, आप डरेंगे नहीं कोई और एक रीजन. मैं अगर हिंदी में पूरा बात करूंगी ना, कोई भी हिंदी स्पीकर भाग जाएगा. आज तक मेरा भाई जाती है, मैं जाता हूँ, बहुत बार होता है, बिकॉज ओडिया में कोई ग्रामेटिकल जेंडर है ही नहीं, हमारे तो सब जाता है. सो यहाँ आके मेरा अच्छा, मैं अगर ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ ना तो डेफिनेटली मैं जाता हूँ, और ज्यादा कॉन्शियस होने से मैं और गड़बड़ करती हूँ. सो बट मुझे दिल्ली में कभी नहीं प्रॉब्लम हुआ बातचीत करने में. लोगों को हंसी आता है पर सब समझ जाते हैं मेरे बात.
सो दैट्स व्हाट, एंड बच्चे टीचर पे हंसना चाहिए, तब तो जाके इक्वालिटी आएगा, थोड़ा बहुत मजाक भी तो होना चाहिए। Okay, I see Manish Kumar, Dr. Manish Kumar Gupta, raising hand. Please ask. नमस्ते मैम। Namaste, how are you? आई एम गुड मैम। मैं यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हूँ और हमारा जो क्षेत्र है ये ग्रामीण परिवेश से है। मैं बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर शिक्षक हूँ। हम दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, बायलिंगुअल में। बच्चे की समझ के लिए हम इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हमारे जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी हैं साइंस के, वो सब इंग्लिश में है। प्रयास तो पूरा करते हैं, बच्चा लिखता भी है इंग्लिश में ही, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से निकल करके अपने करियर के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है, वहाँ पर उसको इस चुनौतियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। खासकर ऐसी कंपनी में अगर जाता है जहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वहाँ पर उसको चुनौतियाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपका एक्सपोजर मैम बाहर का भी रहा है, यूएस में भी रही हैं आप, इंडिया में भी रही हैं, आप बाहर अमेरिका से भारत की तुलना क्या करना जायज़ है, या जो टीचिंग पेडागोजी वहाँ का सिस्टम है उसको हम फॉलो करें वो सही है, या हमारे देश में इतने सारे 29 प्रांत हैं, 29 प्रांत में 29 भाषाएं हैं, सारी भाषाओं में पढ़ाया जाना, आप कैसे इसको सही ठहराती हैं? या एक ही भाषा होनी चाहिए, एक एटलीस्ट सबको पता हो, बाकी रीजनल हो, इसको आप कैसे जस्टिफाई करती हैं? आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, मैं तुलना अगर अमेरिका इंडिया में कहूंगी ना, कई जगह पे इंडिया उनसे आगे होगा। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है ना, हम उसको शुरू से एक्सेप्ट करके चलते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बना दिए, इसीलिए डायलॉग चल रहा है। पर डाइवर्सिटी जो अमेरिका में रादर कम एक्सेप्ट होता है कुछ कुछ जगह पे, उनके अभी भी लड़ाई चल रहा है कि मैक्सिकन चिल्ड्रन को मैक्सिकन लैंग्वेज में पढ़ाएं या अंग्रेजी में पढ़ाएं। सो मेरे एक दोस्त है जो बहुत काम किया है ट्रांस लैंग्वेजिंग पे, ऑफेलिया गार्सिया, न्यूयॉर्क में पढ़ाती है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। एंड वो उनका जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है वो ये है कि ठीक है, मिला जुला के भाषा में पढ़ा दीजिए, 2-3 साल में तो उनको अंग्रेजी आ जाएगा, फिर अंग्रेजी में आ जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए टेक्स्ट बुक्स कह रहा है, पॉलिसी कह रहा है, लैंग्वेज पॉलिसी, कि नहीं आप बाइलिंगुअल करिए और जितना आगे जा सकते उतना आगे जाइए। वी हैव अ मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसी, ऐसे नहीं कि हम हमेशा पीछे हैं, नहीं, ऑन डाइवर्सिटी वी हैव अ प्रोग्रेसिव पॉलिसी। ओके, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज की जो कैपिटल है, ये इकोनॉमिकली रियल है, उसका अपना एक इकोनॉमिक रियलिटी है। अगर आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल देते हो, आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा बहुत जगह पे, ठीक है। और अपने प्रांत से जब बाहर आते हो, वहां पे तो वही शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश ये चलेगा। तो मेरा एक नहीं कहना नहीं है कि अंग्रेजी को आप इम्पोर्टेंस मत दीजिए, ये नहीं मैं कह रही हूँ। पता, मैं उड़िया मीडियम स्कूल से आई हूँ, मैं आगे जाके एजुकेशन में बहुत आगे गई। क्यों गई? क्योंकि जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ी वो मुझे समझ आया था, जो मैं साइंस पढ़ी वो मुझे समझ आया था, जो मैं सोशल साइंस पढ़ी वो थियरी मेरे को मेरे भाषा में पढ़ाया गया था। क्लास 11 तक, हमारे टाइम में क्लास 11 तक था, और कॉलेज 4 साल का था, 2+2। एंड क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छा से समझी थी, कॉलेज में आके थोड़ा अंग्रेजी सीखने के बाद वो अंग्रेजी में ट्रांसफर हो गया। टाइम लगा पर हुआ। पर अगर मुझे अंग्रेजी थोड़ा आती है पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मैं बहुत आगे नहीं जा सकती। तो 2 चीजें, फंडामेंटल चीज है कॉन्सेप्ट डेवलप होना, उसमें लैंग्वेज की इस्तेमाल होती है, और एक है उसके साथ साथ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी डेवलप कराइए। मेरा कहना है कि कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज के एक्सपेंस में कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट के एक्सपेंस में आप लैंग्वेज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे के पास एक लैंग्वेज तो पूरा है, कोई भी एक लैंग्वेज। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंग्रेजी मत करिए, प्लीज करिए, और जितना हो सकता है करिए, पर उसको स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कॉस्ट में मत करिए, बस। मैम, आप जेएनयू में भी पढ़ा रही हैं, और आपके जो कलीग्स हैं वो मीडियम आप जो टीचिंग होगा, आई एम श्योर दैट दे मस्ट बी टीचिंग इन इंग्लिश। वी टीच इन इंग्लिश में टीच कर रहे होंगे। ऐसे में जब भारत के विभिन्न प्रांतों से जो बच्चे आपके विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, और उसमें से ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जो कि हिंदी मीडियम के हों या फिर रीजनल लैंग्वेज, चाहे उड़िया हो, गुजराती हो, मराठी हो, उनको आप कैसे डील करती हैं ऐसे स्टूडेंट को? 2-3 चीजें मैं क्विकली बोलूंगी, मैं और एक हाथ, somebody is raising his hand।
एक है जब मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ और मुझे क्लासरूम की डाइवर्सिटी मालूम है। हमारे पास ज़्यादा गांव के बच्चे आते हैं क्योंकि हम थोड़ा प्रमोट करते हैं वो चीज़ ना। आजकल मुझे नहीं मालूम है, पर ज़्यादातर हम प्रमोट करते थे। और रिजर्वेशन भी हमारा ऐसे ही था, जो पहले वाला रिजर्वेशन, लड़कियां गाँव से, ये सब हम ज़्यादा मार्क्स देते थे, मतलब एक एडवांटेज पॉइंट्स देते थे, तो वो ज़्यादा आते थे। मैं अंग्रेजी को हमेशा धीरे धीरे बोलती हूँ, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स लाती हूँ, और स्टूडेंट्स को जरूरत पड़े तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। एंड बहुत टाइम में ये मैं बहुत करती हूँ। अगर एक स्टूडेंट थोड़ा वीक है, मेरे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को मैं उनके साथ अटैच कर देती हूँ। मैं उनको, आप जब आएंगे देखेंगे हमारा लाइफ इज वेरी डिफरेंट। आई टेल ए ग्रुप कि इसको अपने ग्रुप में डाल दो, जहाँ चाय पीने बैठते उसको अपने साथ बिठाओ, शाम को घूमने जाते हो अपने साथ बिठाओ, उसको अपने ग्रुप में बना दो, ले लो। और वो आपके साथ बात करके बकबक करके, यहाँ सब लोग बकबक करते हैं, जेएनयूआइट्स बहुत भाषण मारते हैं और बच्चे ज्यादा भाषण मारते हैं टीचर से। तो क्लासरूम में हम 20% पढ़ाते हैं, 80% पढ़ाना गंगा ढाबा कर देता है। हॉस्टल में गंगा ढाबा, लाइब्रेरी में पढ़ना नहीं, ये जो चाय पकड़ के कप पकड़ के बात करते हैं ना, वहां शिक्षा हो जाती है। मेरा 80% काम स्टूडेंट्स करते हैं, तो मैं पर एक काम करती हूँ, मैं इनको किसी ग्रुप में रख देती हूँ। एंड हमारे बच्चे भी अजीब है, वो पूरा टाइम देते हैं। आप उनको बस बोल दीजिए इसका ये थोड़ा मुश्किल है, इसको ठीक कर दो। मेरे एक स्टूडेंट अभी बैंकॉक गई प्रेजेंट करने के लिए, ओडिया स्टूडेंट है, मुझे कीनोट के लिए इनवाइट किए थे, मैं नहीं जा पाई, सो आई रिक्वेस्टेड कि मेरे स्टूडेंट दे गेट द फुल फेलोशिप। वो अंग्रेजी में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पिछले 10 दिन अभी वो करके आ गया। जाने से पहले 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स है उसके साथ बैठे, उसको प्रेजेंटेशन कराए, उसके पीपीटी करेक्शन करवाए। और अभी जब आया मैंने बोली कैसा मैडम, बहुत बढ़िया हुआ, और ऑफेलिया से मैडम से भी मिले। सो व्हाट आई एम सेइंग, हमारा जो स्कैफोल्डिंग सिस्टम है ना, वो यही है। और ये करने के लिए कॉलेज की जो एनवायरनमेंट है, अगर आपका कॉलेज की वो एनवायरनमेंट आप ला सकते हैं, हर कुछ संभव है। जब मैं सोचूंगी सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, एक तरह से पढ़ाऊंगी, नहीं होगा। पर ये है, मैंने जरूरत पड़े तो हिंदी में बोलती हूँ, 50 एग्जाम्पल लाती हूँ। और मैं एक जो शुरू का क्लास है ना, एक कॉन्सेप्ट को मैं 2-3 क्लास तक पढ़ाती हूँ, मैं कभी भागती नहीं हूँ, एक जगह पे रह जाती हूँ। जब स्टूडेंट्स मेरे साथ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स में, तब मैं उनको एक स्पीड में लेती हूँ। तो हमारा पहला वाला जो डायलॉग है वेरी स्लो, उसके आगे जाके और एक चीज है, हम सारे टीचर्स पैराडिग्मेटिकली शेयर करते हैं कुछ चीजें, तो वो वही सारे चीज मेस में सुनेंगे, उसमें लाइक इट्स अ कलेक्टिव लर्निंग। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अबाउट कलेक्टिव लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लैंग्वेज, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। एंड संभव है, आप करिए, एक्चुअली इट इज मच बेटर। डॉक्टर बबीता पराशर एंड भावना के। थैंक यू मैम। We can take one question more. Babita ma'am, आप पूछ लीजिए, because our next person has joined the session. Okay, ma'am, just quickly one submission. Ma'am, अभी at present I am based in Africa, एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे स्कूलों के साथ मैं काम कर रही हूँ साइंस और मैथ्स में। मैम, इनका प्रीडोमिनेंट जो नेटिव लैंग्वेज है वो पोर्चुगीज है, और बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग का भी और एक पैरेलली एक स्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम हो और वो सब हो। मैम, मैंने यहाँ पर आने के बाद देखा कि जो कुछ जैसे साइंस की अपनी कोई ऐसी भाषा भी नहीं है, मतलब इट्स वेरी कंसेप्चुअल। और जब मैंने क्लासरूम्स में जाके साइंस पढ़ाना शुरू करा उन बच्चों से जो अभी इंग्लिश सीख रहे थे, क्योंकि आना था, लेकिन पोर्चुगीज में सोचते हैं और उनका एक्सप्रेशन है, और तब मैंने देखा कि मैम मेरा बेटा भी उसी स्कूल में है कि वो मेरे साथ था। थोड़े दिनों बाद अगर उसको मतलब when he gets stuck, he picks up phrases from Portuguese to explain it to his friend. I mean, that's how brain works. I think it was very mutual for him to explain things. या जब बच्चे आके कहते हैं कि आज जब मैं फुटबॉल ग्राउंड पे गिर गया तो जो मुझे चोट लगी वो फ्रिक्शन फोर्स था मैम, या जब मैं झूल रहा। सो इट इज सो एनरिचिंग मैम, कि बिल्कुल ही अलग एक पोर्चुगीज तो मेरे लिए बिल्कुल ही एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अभी भी है, बिकॉज आई एम स्टिल ऑन माय डेप्यूटेशन विद देम, बट इट इज वेरी एनरिचिंग टू कम अक्रॉस एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंकिंग इन अ साइंस क्लासरूम। आपको एक काम बात बताती हूँ, अफ्रीका मैंने 2-3 बार गई हूँ,
जी वहाँ मेरे कैथलीन ह्यू थी. शी इज अ ब्रिटिशर, born and brought up in South Africa. And then Alexander, फुल नेम मुझे याद नहीं आ रहा. कई सारे हमारा कोलैबोरेटर्स थे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में. बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब हम लोग हिस्ट्री लिख रहे थे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे, वी रियलाइज दैट ये मदर टंग एजुकेशन MTE was discovered in South Africa by this group, Alexander और उनके टीम से. हम लोग मदर टंग बेस्ड एजुकेशन बोल रहे हैं, but that as a paradigm actually was propagated by them, because उनकी जो linguistic is like us only. See, multilingual जो पैराडाइम है, ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, पर इस हमारे क्लास में हायरार्की खड़ा हो जाता है. जो जैसे JNU में जो सेंट स्टीफन से आते हैं, वो अपने आप को बड़े सुपीरियर समझते हैं, और वो 2 महीने बाद उनको समझ आ जाता है कि ये जो गांव से बच्चे आते हैं, जब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं उनको हिला नहीं पाओगे. तो वो जो एरोगेंस है जो लैंग्वेज से आती है, वो हिल जाती है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को एम्फेसिस देते हैं. नॉट दैट दे बिकम इंफीरियर, नो, एवरीबडी हैज सम स्ट्रेंथ. जब सब अपने भाषा में और अपने एक्सपीरियंस लेके आते हैं, यू रियलाइज दैट नो, सिटी हैजंट गिवन यू एज मच एज विलेज इज गिवन टू स्टूडेंट्स. सो ये जो जैसे टॉप डाउन एक हायरार्की बन जाती है, वो ब्रेक करता है. वॉइस इक्वल हो जाता है, इट गिव्स वॉइस टू एवरीबडी. एंड ये जो आप कह रहे हैं ना, जब नहीं समझा पाते हैं, अगर उसकी अच्छे एक्सप्रेशन पोर्तुगीज में है, वो वर्ड यूज करते हैं, यही होगा. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. इट्स ऑलवेज, बिकॉज आई एम ए टीचर नो, so it is always interesting to talk to teachers.